Good morning, students. Today we are going to see the another topic of the clutches. So today we will study about the cone clutch. Cone clutch is basically the very first clutch that was introduced in the friction clutches, but it's gone obsolete nowadays. So that's why it is not used in automobiles or anywhere else. But uh, we have to see but we will see it. Okay, so let's start with the cone clutch. Okay, uh, you have seen in diagram you have seen the typical cross section of the cone clutch. It was extensively used in automobiles, but nowadays it has been replaced by the disc clutches. It consists of one pair of friction surface only. It doesn't have two pairs or three pairs. It have only one pair of friction surface. Now in a cone clutch, there are two parts: the driver and the driven. Now the driver is keyed to the drive shaft by a sunk key. You have seen if you can see this part. This one is the driver, okay, and this one is the driven. So driver is keyed to the driving shaft by a sunk key and has inside conical surface or face which exactly fits through the outside conical surface of the driven. This is the inside conical surface of the driven, and this is the outside conical surface of the driven. So outside conical surface of the driver fixed in the inside conical surface of the driver. Now, the driven member is resting on the feeder key in the driven shaft. This one is our driven shaft, and with the help of feather key, it is resting on it. Okay, and it may be shifted along the shaft by forked lever provided at B. This forked lever can help this driven member to be shifted on the shaft. Now, in order to engage the clutch by bringing the two conical surface in contact, due to the frictional resistance set up at this contact surface, the torque is transmitted from one shaft to another. Now, this whenever we engage this particular driven with the driver, this friction surface, you can see the conical friction surface over here. These are in the marked in the black spots. This engaged by each other and the torque is transmitted. Now in some cases spring is also placed. So this one is the spring is placed here around the driven shaft in contact of hub with the driven shaft, so that force can be easily transferred. Now the spring holds the clutch face in contact to maintain the pressure between them. So to maintain pressure, spring holds the clutch and it pushes the driven member into the driver member, and the fork lever used to disengage the clutch, and this fork lever is used to disengage the clutch. This one is the fork lever here. It fits. Now the contact surface of clutch, it may be metal to metal contact, but more often the driver member is lined up with some material like wood, leather, cork, or asbestos. Now the material of clutch face that is on the contact surface depend upon the allowable normal pressure and the coefficient of friction. So this allowable normal number coefficient of friction. So as per the requirement of our torque transmitted, we select the material over it. Okay, now let's start with the design of a cone clutch. It is a very important topic. It generally used asked too much times in the exam, so we have to see it properly. Okay, now let's start with the design of the cone clutch. In the left hand side, in the right hand side, you can see that the friction surfaces as the frustum of cone's frustum pe we can see the friction surface. This one is the friction surface. Okay, and this is the circular ring of the friction surface that is made in the cone. ओके, कोन में जो सर्कुलर रिंग बढ़ रही है, जनरली ये जो है दिस पर्टिकुलर लाइन is aligns over here. Fine, this is aligned over here. So now let us consider a pair of friction surface of cone clutch as shown in figure. Now we can see that the area of contact of pair of friction surface is the frustum of a cone. Okay, जो contact surface का area है वो cone के frustum के accordingly रहेगा. Now let
Pn is equal to intensity of pressure with which conical friction surfaces are held together. That is normal pressure between the contact surfaces. R1 is the outer radius of the friction surfaces. R2 is the inner radius of friction surface. Mean radius of friction surface, capital R, is the mean radius of friction surface, which is equal to R1 plus R2 upon 2. Now, alpha is the semi-angle of cone. This alpha is known as the semi-angle of cone, also called the face angle of the cone or angle of friction surface with the axis of clutch. Mu is the coefficient of friction between the contact surfaces, and B is the width of friction surfaces, also known as the face width of the cone face. Face width or cone face. Now, consider a small ring of radius r with thickness dr as shown in figure, and let dl be the length of the ring of the friction surface such that dl is equal to dr cosec अल्फा. ये अपन ने आइडेंटिफाई किया है, ये अपन ने अज्यूम किया है कि dl इज इक्वल टू dr cosec अल्फा. अपन ने dr और r को इस टाइप से कंसीडर किया और dl की लेंथ इस टाइप से ली है, दैट dl इज इक्वल टू dr cos अल्फा. सो एरिया ऑफ रिंग विल बी 2 pi r into dl, and okay, 2 pi r into dl, area of the ring, that will be 2 pi r length हो जाएगी, 2 pi r उसका circumference and dl will be length. So the area will be 2 pi r dr cosec alpha. Now we have to consider again two cases, when there is a uniform pressure and when there is a uniform wear. Now let's start with considering the uniform pressure first. Now we know that the normal force acting on the ring, delta Wn, is equal to normal pressure into area of the ring, which is Pn into 2 pi r dr cosec alpha. So, and the axial force acting on the ring, delta W, is equal to horizontal component of delta W, that is in the direction of the W. So, delta W is equal to delta Wn sine alpha, which is equal to Pn 2 pi r dr cosec alpha into sine alpha. Therefore, the total axial load, okay, so total axial load transmitted to the clutch or the axial spring force is W is equal to, now here you can see the sin alpha और cosec alpha get cancelled, है ना. तो अपने पास यहाँ पे सिर्फ बचेगा Pn 2 pi Pn r dr. sin alpha cosec alpha हट जाएगा. So total axial load transmitted to the clutch on the clutch or the axial spring force required, that is W को अपन इंटीग्रेट कर देंगे. W will be integrate for R1 to R2, that is integration R1 to R2 2 pi into Pn r dr. Integration will be goes 2 pi Pn r square by 2 into R1 R2, that means 2 pi Pn R1 square minus R2 square upon 2. So W is equal to pi Pn, यहाँ से 2 से ये 2 cancel out. Okay, so W will be pi Pn R1 minus R2, या R1 square होगा actually, ठीक है, R1 minus R2 square. So Pn will be equal to W upon pi R1 square minus R2 square. This is the equation number 1. Now, moving further, we know that the frictional force on the ring acting tangentially at radius r, that is Fr, is equal to mu delta Wn. Fr is equal to mu delta Wn is equal to mu Pn 2 pi r dr cosec alpha. So therefore, frictional torque acting on the ring, Tr is equal to Fr into r mu Pn 2 pi r dr cosec alpha into r. So or Tr is equal to 2 pi mu Pn cosec alpha r square dr. Now integrating this expression within the limits from R2 to R1 for the total frictional torque on the clutch. Therefore, total frictional torque T is equal to integration R1 to R2 2 pi r 2 pi mu Pn cosec alpha r square dr. Now 2 pi mu Pn cosec alpha, ये तो कांस्टेंट होगा, सो बाहर हो गए. r स्क्वायर को अपन ने इंटीग्रेट किया, सो दिस बिकम्स r क्यूब अपॉन r3, जिसकी की लिमिट r2 से लेके r1 तक जाएगी. सो t विल बी, अपन ने लिमिट्स पुश कर दी. सो t इज इक्वल टू 2 pi mu Pn cosec alpha, 2 pi mu Pn cosec alpha r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब अपॉन 3. लेक्चर ले रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ. लेक्चर ले रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ. So T is equal to 2 pi mu Pn cosec alpha r1 cube minus r2 cube upon 3.
सो अपन ने इसको और आगे फर्दर किया, सो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई म्यू पी एन कॉसेक अल्फा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब अपॉन 3. नाउ substituting the value of pn from equation number 1, we get t is equal to 2 pi mu into w upon pi r1 square minus r2 square into cosec alpha r1 cube minus r2 cube upon 3. ठीक है, अब इसमें अपन ने आगे वर्कआउट किया, सो दिस विल बिकम्स t is equal to 2 upon 3 mu w, पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हुआ. सो t इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 म्यू w कॉसेक अल्फा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. फाइन. नाउ this one is torque transmitted for our uniform pressure. Now let us consider the uniform wear. Now let PR be the normal intensity of pressure at distance r from the axis of the clutch. Fine. And we know that in case of uniform wear, the intensity of pressure varies inversely with the distance. Now PR into R is equal to C. It is a constant. PR into R is equal to C, a constant, or PR is equal to C upon R. Now, we know that the normal force acting on the ring, delta Wn, is equal to normal pressure into area of the ring is equal to PR into 2 pi R dr cosec alpha. And the axial force acting on the ring, delta W, is equal to delta Wn into sine alpha PR into sine alpha. Now, this is equal to साइन डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे पी आर इंटू 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा. अगेन साइन अल्फा कॉसेक अल्फा गेट कैंसल्ड, सो डेल्टा डब्ल्यू विल बिकम 2 पाई आर इंटू पी आर आर डी आर. और यहाँ पे अपन पी आर की भी वैल्यू रख सकते हैं. पी आर की वैल्यू अपन ने यहाँ पे देखी है, दिस वन इज सी अपॉन आर. ठीक है, सो यहाँ मैंने पी आर की वैल्यू रख दी इस जगह पे. So delta W is equal to 2 pi into C upon R into R dr, which is equal to, अब देखो ये R से R कैंसिल हो गया, so this becomes 2 pi C into dr. ये आ गई अपनी axial force delta W की वैल्यू. Now therefore the total axial load transmitted to the clutch, अब total axial load कितना होगा, so इसको अपन R1 से लेके R2 से लेके R1 के लिए अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे. So integrating W is equal to integrating from the limits R2 to R1 2 pi C dr. So 2 pi C constant है, simple integration हो जाएगा R. So R का integration R2 to R1, so that's my 2 pi C R1 minus R2, which this will becomes W, or we can see capital C is equal to W upon 2 pi R1 माइनस R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये अपनी C की वैल्यू यहाँ पे अपन को यहाँ पे अपन ने आइडेंटिफाई कर ली. नाउ आगे अपन देखते हैं. वी नो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियली एट द रेडियस. ठीक है, जो टेंजेंशियली रेडियस के ऊपर एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एफ आर इज इक्वल टू म्यू डेल्टा डब्ल्यू एन. ये अपना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है. दिस इज इक्वल टू म्यू पी आर इंटू 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा. म्यू रख दी, डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू रख दी अपन ने पी आर इंटू 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा. सो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग टी आर इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर. सो और वी कैन से म्यू पी आर 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा इंटू आर. इस टोटल को अपन ने कर दिया, सॉल्व किया, और पी आर में सी अपॉन आर की वैल्यू रखी, देन इट बिकम्स टी आर इज इक्वल टू म्यू सी अपॉन आर 2 पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा इंटू आर. अब देखो यार, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया. ठीक है, सो जो मेरे पास रिमेनिंग बचा दैट इज 2 पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा. ये पूरे कॉन्स्टेंट्स हो गए अपने, 2 पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा एंड आर डी आर. ये अपना टोटल जो अपना टॉर्क बचा, फ्रिक्शनल टॉर्क जो टोटल रिंग पैक कर रहा है. ठीक है, नाउ integrating this expression within the limits from R2 to R1 for total frictional torque on the clutch. ये तो अपना सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा था टीआर. अब टोटल फ्रिक्शनल
जो आपका क्लच है उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा है उसके लिए अपन देखेंगे। सो अपन अगेन वही इंटीग्रेट करेंगे, ये जो टी है इसको लिए अपन इंटीग्रेट कर देंगे R1 R2 से लेके R1 तक के लिए। सो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क विल बिकम T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R2 टू R1 2 पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा R dr, और इसका इंटीग्रेट कर देंगे। सो 2 पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा R स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम R1 टू R2, देन वही R स्क्वायर अपॉन वही अपना सेम लिखा हुआ है। देन यहाँ पे अपन आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में R1 R2 की वैल्यू जो लिमिट्स हैं R1 R2 की वो अपन लिमिट्स पुट करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई विल गेट T इज इक्वल टू 2 पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2, ये अपने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में जो मैंने c की वैल्यू देखी थी उस c की वैल्यू को मैं यहां जब सब्सटीट्यूट करता हूं, इन दैट केस आई विल फाइंड t इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन 2 पाई R1 माइनस R2 इंटू कॉसेक अल्फा। अब ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को मैंने एक्सपैंड कर दिया R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, सो ये R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल आउट हो गया, एक 2 से ये दूसरा 2 चला गया, इस पाई से ये पाई चला गया। ठीक है, सो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर बचा दैट इज t इज इक्वल टू म्यू w कॉसेक अल्फा R1 प्लस R2 अपॉन 2, ये मेरे पास बचा हुआ रिमेनिंग ऊपर से जो अपन ने वर्कआउट किया था उसके बाद में रिमेनिंग ये बचा। सो मैंने क्या किया यहाँ पे t इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक अल्फा, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया t इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक अल्फा वेयर r इज इक्वल टू R1 प्लस R1 R2 अपॉन 2 मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शनल सरफेस। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे मैंने जो टॉर्क ट्रांसमिटेड था उसको अपन आपको याद आ रहा हो तो ये फ्रिक्शनल जो अपना वो था सिंगल प्लेट क्लच का जो टॉर्क ट्रांसमिटेड था दैट इज t इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर, उसी में सिर्फ हमने कॉसेक अल्फा का और मल्टीप्लाई हो गया है, बाकी सेम ही है चीजें। ठीक है, r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2 है। नाउ सिंस द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस दैट्स व्हाई Wn विल बी इक्वल टू W कॉसेक अल्फा। ठीक है, फ्रिक्शनल सरफेस पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, सो Wn जो है दिस इज इक्वल टू W कॉस अल्फा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 को अपन लिख सकते हैं T इज इक्वल टू म्यू Wn इंटू आर। ठीक है, W कॉसेक अल्फा जो है वो म्यू Wn के बराबर है, सो दैट्स व्हाई इसको अपन लिख सकते हैं T इंटू म्यू, T इज इक्वल टू म्यू Wn इंटू आर। ये अपना टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला आ जाएगा यहां से। नाउ अब दो तीन चीजें अपने को इसमें देखने के लिए अगर अपन ध्यान से देखें तो वो चीज अपने को आइडेंटिफाई करनी होगी। नाउ ये दो डायग्राम्स है। नाउ द फोर्सेस ऑन फ्रिक्शन सरफेस फॉर स्टडी ऑपरेशन ऑफ क्लच एंड आफ्टर द क्लच इज एंगेज्ड इज शोन इन दिस फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब इन दोनों फिगर्स के अंदर जो क्लच के ऑपरेशन के टाइम पे जो उस पर फोर्स लग रहे हैं वो अपन लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला है ये स्टडी ऑपरेशन ऑफ क्लच है और नीचे वाला जो है वो ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ऑफ द क्लच है। ये जब स्टडी ऑपरेशन चल रहा है उस टाइम पे क्लच पे लगने वाले फोर्सेस हैं और ये वाइल एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। नाउ फ्रॉम फिगर ए वी कैन फाइंड दैट R1 माइनस R2 इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। ठीक है, R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है वो अपनी बी साइन अल्फा के बराबर आ जाएगी। ये जो डिस्टेंस है अपना, ठीक है, ये है अपना R1, ये है अपना R2 एंड ये जो डिस्टेंस है अपना दिस डिस्टेंस इज B। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा अपना ये अल्फा एंगल आ जाएगा। सो B साइन अल्फा अपने को यहाँ पे इससे मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस चाहिए है, ये डिस्टेंस है B, ये डिस्टेंस है अल्फा, ये एंगल जो है यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो ये जो एंगल आएगा दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, सो जो आपका ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, दिस विल बिकम्स बी साइन अल्फा। सो ये है अपना R1 माइनस R2। सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू बी साइन अल्फा एंड वी नो दैट
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R, ये अपन को मालूम है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 नॉर्मल प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंगली जो नॉर्मल प्रेशर इक्वेशन उस पर एक्ट करेगा फ्रिक्शन सरफेस पे, पी एन दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन R1, डब्ल्यू अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसको अपन एक्सपैंड कर लेते हैं, डब्ल्यू अपॉन पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। अब R1 प्लस R2 को मैंने लिख दिया है 2R। ठीक है, ये अपन ने यहां से देखा था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R एंड R1 माइनस R2 इज B साइन अल्फा, ये अपन ने यहां से देखा था, R1 माइनस R2 इज B साइन अल्फा, तो ये दोनों वैल्यूज रख दी, तो Pn विल बिकम W अपॉन 2 पाई RB साइन अल्फा, और W इज इक्वल टू Pn इंटू 2 पाई RB साइन अल्फा, और वी कैन से दिस इज Wn साइन अल्फा, वेयर Wn is equal to normal load acting on the friction surface। ठीक है, W जो है वो नॉर्मल लोड है जो कि फ्रिक्शन सरफेस पर एक्ट कर रहा है, विच इज इक्वल टू Pn इंटू 2 पाई RB, ओके, विच इज इक्वल टू Pn इंटू 2 पाई RB। नाउ इक्वेशन 4 में अगर मैं Wn की वैल्यू रखता हूं, ठीक है, W की वैल्यू रखता हूं, इन दैट केस मेरे पास जो आएगा T इज इक्वल टू म्यू इंटू Pn इंटू 2 पाई RB साइन अल्फा R कॉसेक अल्फा। ठीक है, इसको मैं और आगे अगर वर्कआउट करूं तो साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा होता है ना, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद में अपन जो बचेगा मेरे पास दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू पी एन आर स्क्वायर बी, ये आर दो बार है, सो 2 पाई म्यू पी एन आर स्क्वायर बी। नाउ ये जो इक्वेशन है दिस इज वैलिड फॉर ओनली स्टडी ऑपरेशन ऑफ द क्लच आफ्टर द क्लच इज एंगेज्ड। जब क्लच एंगेज हो जाएगा एंड देन जब उसमें स्टडी ऑपरेशन रहेगा, एक नॉर्मल स्पीड में वर्क करता रहेगा क्लच, एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। ठीक है, सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द कोन क्लचेस, कुछ कोन क्लचेस के लिए कुछ और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपने को डिस्कस करनी है या फिर अपने को मालूम होना चाहिए, that is, now if the clutch is engaged when one member is stationary and another member is rotating, that is during the engagement of clutch as shown in the figure B। इस फिगर में जो फिगर बी में जो शो किया गया है कि व्हेन एंगेजमेंट, एक मेंबर स्टेशनरी है और एक मेंबर जो है वो वर्किंग में है, फंक्शनल में है, इन दैट केस then the cone faces will tend to slide on each other due to the pressure of relative force। ठीक है, उस टाइम पे जो कोन के फेसेस हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे अदर रिलेटिव मोशन के प्रेजेंस में, thus the additional force of magnitude mu wn cos alpha will act on the clutch which resists the engagement and the axial force required for engaging the clutch increases। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेटिव मोशन के कारण एक एडिशनल फोर्स म्यू डब्ल्यू एन क्रॉस अल्फा ये एक्ट करेगा और ये एंगेजमेंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, और जो एक्सियल फोर्स रहेगा जो एंगेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड रहता है वो फोर्स इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई जो आपका कोन क्लच था, कोन क्लच में अपने को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता था फॉर एंगेजमेंट। ठीक है, अपने को लोड ज्यादा देना पड़ता था, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता था एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि वाइल एंगेजमेंट उसका खुद का एक फोर्स उसका एंगेजमेंट को रेजिस्ट करता था। दैट्स वाई जब कोन क्लच यूज होते थे तो उसमें अपने को पावर ज्यादा लगानी पड़ती थी, ज्यादा गाड़ी चलाते टाइम थकावट होती थी। ठीक है, तो सो नाउ axial force required for engaging the clutch we will be equal to w plus mu wn cos alpha, और this is equal to w को अपन लिख सकते हैं wn sin alpha which is equal to plus mu wn cos alpha। so wn अपन ने कॉमन लिया तो sin alpha plus mu cos alpha, तो जो एंगेजिंग फोर्स था क्लच के लिए दैट इज wn के साथ में sin alpha plus mu cos alpha, ये एक फैक्टर ऐड हो जाता था, ये एक फैक्टर एक्स्ट्रा लगता था जिसकी वजह से अपने को एक्स्ट्रा इतना लोड अपने को एंगेजमेंट के लिए यूज करना पड़ता था। नाउ एक और चीज अगर अपन देखें, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द टर्म
म्यू डब्ल्यू एन कॉस अल्फा इज ओनली 20%, 25% इफेक्टिव। ये 25% इफेक्टिव होता था। सो दैट्स वाई जो एक्सियल फोर्स हो जाएगा अपना, दैट इज डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एन साइन अल्फा प्लस 0.25 म्यू डब्ल्यू एन कॉस अल्फा। सो डब्ल्यू एन इज डब्ल्यू एन टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस 0.25 म्यू कॉस अल्फा। सो जो टोटल फोर्स है वो अपना 25% इफेक्टिव होता था। एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई किया गया है डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू एन कॉस अल्फा 25% इफेक्टिव था। दैट्स वाई जो एक्चुअल अपने पास एंगेजिंग फोर्स लगता था दैट इज साइन अल्फा प्लस 0.25 म्यू कॉस अल्फा। ये इतना फोर्स अपने को यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ता था। नाउ एक the another thing is the under the steady operation of clutch, a decrease in semi-cone angle alpha increases the torque produced by the clutch and reduces the axial force during engaging period. The axial force required for engaging clutch WE increases under the influence of friction as the angle alpha decreases. ठीक है, एंगल अल्फा के डिक्रीज की वजह से आपका इसका जो WE का इंक्रीज हो जाता है। नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फा कैन नॉट बी डिक्रीज मच बिकॉज स्मॉलर सेमीकोन एंगल अल्फा रिक्वायर्स लार्जर एक्सियल फोर्स फॉर इट्स डिसएंगेजमेंट। अल्फा को अपन जैसे जैसे कम करते जाते हैं अपना जो एंगेजिंग फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अल्फा सेमी एंगल को अपन कम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जितना कम करेंगे अपना एक्सियल फोर्स डिसएंगेजमेंट के लिए उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। एंगेजिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन डिसएंगेजिंग के लिए मेरा फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, मुझे उसे वापस खींचने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा। नाउ इफ द क्लच इज टू बी डिजाइन फॉर फ्री डिसएंगेजमेंट, द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू। अगर मेरे को क्लच को फ्री डिसएंगेजमेंट के लिए डिजाइन करना है देन 10 अल्फा की वैल्यू म्यू से ज्यादा होनी चाहिए। इन केस द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा इज लेस देन म्यू, द क्लच विल नॉट disengage itself and the axial force required to disengage the clutch, which is given by WD is equal to WN mu cos alpha minus sin alpha। ठीक है, अगर आपका क्लच एंगेज नहीं करता है इन दैट केस अपने को एक्स्ट्रा वर्क के साथ में करना पड़ेगा, है ना। सर लेक्चर ले रहा था, 2 मिनट में आता हूँ मीटिंग के लिए। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, ठीक, हाँ ठीक। So WD is equal to WN mu cos alpha minus sin alpha. Okay, so this is the working of the cone clutch. फाइन, ये टोटल कोन क्लच का आपका डेरिवेशन था। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा समझने में परेशानी आती है, कोन क्लच को थोड़ा सा हार्ड रहता है वर्किंग में। सो दैट्स वाई आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको प्रॉपरली चेक कीजिए। इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, प्लीज डू लेट मी नो, है ना। एंड एज प्लीज डू लेट मी नो सो दैट कि अपन लोग इसके ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट कर सके। फ्रॉम माय साइड टुडे दैट्स ऑल। कल अपन लोग कोन क्लच के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच के न्यूमेरिकल देखेंगे। इन बिटवीन अपना बस एक क्लच का पार्ट बचा हुआ है, दैट इज आवर सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच के साथ में अपन लोग वर्कआउट करेंगे। सो थोड़ा सा अपन लोग उसमें वर्किंग का देख लेंगे, है ना। सो वी विल सी विद द tomorrow we will see with the centrifugal clutch and and the numerical of it. Then next we will go with the numericals of cone clutch and other things. Fine, so that's all for the day from my side, students. Thank you very much. Bye.